Assalamu alaikum viewer. Our today topic is present continuous. In the previous lecture we have covered present simple structure and function. In today's video you will learn present continuous structure, function and difference between present simple and present continuous tense. You can see present continuous tense. Okay, present continuous tense structure: positive, subject plus is or am plus verb plus ing. Verb plus ing mean present participle. So example for positive: I am playing football. Okay, then with I you use am, and we, you, they, plural names, all playing football. Then for third person singular, he, she, it, and single name is playing football. So it means we use is with third person singular, or with second person and first person and third person plural, and with first person singular we use am or So it was structure for what? For positive, no negative. You can see subject plus is or am plus not plus verb plus ing. Try your best to remember. Suppose example given for negative: I am not playing football. We, you, they, plural names are not playing football. And he, she, it, single name is not playing football. Then we have interrogative. Suppose you can see is or am plus subject plus verb plus ing, sign of interrogation. Example given: am I playing football? Or we, you, they playing football? Is he, she, it playing football? So these were the example. You can see. Now uses is very important. First comes structure, then come function. So you can see we can use present continuous. So it is used to, the first use, to express real present. It denotes an action taking place at the time of speaking, or it always denotes a temporary action. ये हमेशा जो है कोई आर्जी एक्शन है या कोई काम जो है जिस वक़्त हम बोल रहे हैं उस वक़्त हो रहा हो, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पर वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब यह है कि बोलने वाला जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं. फिर आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्सेस प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट कंटिन्यूस शोज अ प्रेजेंट एक्शन. ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये जो है जो मौजूदा काम है उसको दिखा रहे हैं. एंड प्रेजेंट सिंपल शोज हैबिट एक्शन. और जो प्रेजेंट सिंपल है वो हमारे रूटीन काम को दिखाता है. सपोज मैं कहता हूँ आई एम ड्राइविंग अ कार, इसका मतलब यह है कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ. अगर मैं कहता हूँ आई ड्राइव अ कार, इसका मतलब यह है कि मैं ये रूटीन में करता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन शो करता है. तो दोनों में यही फ़र्क है. अच्छा, तो हम ये पढ़ा रहे हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है इसका एक ये काम है कि ये रियल प्रेजेंट हमें दिखा रहा है. इट डिनोट्स एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और इट ऑलवेज डिनोट अ टेम्पररी एक्शन. एग्जाम्पल दिया है. फिर ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये प्रेजेंट सिंपल के मुकाबले में इसके क्या फंक्शन है. व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस shows a present action and present simple shows habit action. Suppose I am teaching English, I teach English. I am teaching English, it means I am teaching English at the time of speaking. And I teach English, it means this is my profession. So this is very important. You should keep in your mind. आप ये पॉइंट याद रखें. और अक्सर स्टूडेंट जो हैं इसमें मतलब हम जब बात करते हैं तो हम कम्युनिकेट सही नहीं करते हैं. तो ये कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो गई. दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं जो हाईलाइट किया हुआ है, टू डिनोट एक्शन टेकिंग प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हम इसको इस काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम जो है बहुत देर तक या बहुत देर से हम कर रहे हैं. सपोज उसने लिखा है आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी दीज डेज, इसका मतलब ये है कि
ये जो काम है जो हो रहा है तो अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। अ लॉन्ग पीरियड, हम कह रहे हैं ना, हम गंदम काट रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अभी स्कूल नहीं जा रहा है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन कोई काम जो है ना थोड़ा सा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो हो रहा है, या एन एक्शन टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी दीज डेज, कह रहे हैं कि आजकल मैं जो है ना यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि वो अब नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये कुछ हो रहा है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई काम जो है टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। इसलिए दूसरा जो इसका इस्तेमाल है, बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है, टू रिपेयर टू प्लान फॉर नियर फ्यूचर। जब कोई काम हमने पहले से इसकी मनसूबाबंदी की है और नियर फ्यूचर में हम इसके लिए, सपोज मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू टेक टी, इसका मतलब यह है कि मैं जहनी तौर पर तैयार हूँ, इंटेंशनल उसमें है। अगर किसी जगह पे इंटेंशन है तो हम वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं, न कि हम फ्यूचर सिंपल यूज़ करते हैं। फ्यूचर सिंपल हम सिर्फ रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर द फ्यूचर टाइम यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ कोई जो है इंटेंशन नहीं होता। अगर इंटेंशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेंशन शो करता है। सपोज इसने लिखा एग्जाम, वी आर गोइंग टू कराची टू गो टू सऊदी अरबिया, कराची जा रहे हैं और फिर सऊदी अरब जाएगा, वी हैव मेड नेसेसरी अरेंजमेंट, पता चला कि बाकायदा प्लान के साथ वो जा रहा है, ठीक है। सपोज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस वक्त यूज़ करते हैं कि हम जो है वी आर गोइंग टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, तो ये जो है वो उस बंदे को पता चलेगा कि उसकी पूरी तैयारी मौजूद है। अगर वो कहता है वी विल गो, तो इसमें कोई सिर्फ वो प्रेडिक्ट करता है, इंटेंशन नहीं यूज़ करता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हुई, आप याद रखें। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन विच आर नॉट लाइक बाय द स्पीकर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आप देख सकते हैं, टू एक्सपेक्ट हैबिचुअल एक्शन विच आर नॉट लाइक बाय द स्पीकर, ऐसे कामों के लिए जो बार बार हो रहा हो लेकिन बोलने वाला इसको पसंद न करे, तो अक्सर ये बोलते हैं यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, यू आर नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है यू आर नॉट ऑलवेज वर्किंग, तो आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन विच आर नॉट लाइक बाय द स्पीकर। एग्जाम्पल, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, इट इज़ लास्ट चांस फॉर यू। तो टीचर ने बोला कि आप रोज़ाना लेट आ रहे हो और ये आखिरी चांस तुम्हारे लिए हो गया। इसका मतलब ये है कि ये काम उसको पसंद नहीं है, इसको पसंद नहीं है, इसलिए उसने ये यानी टेंस यूज़ किया है। फिर इम्पॉर्टेंट नोट है, ठीक है, इस टेंस के हवाले से इम्पॉर्टेंट नोट है, सम वर्ड्स आर नॉट यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिस तरह इसमें जो है कुछ वर्ब ऑफ कॉग्निशन है, सेंसेशन है, परसेप्शन है और कुछ और हैं। कुछ मैंने लिखे हैं, सम वर्ड आर नॉट यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दे आर एज फॉलोज। उसमें मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, सी, हियर, लव, स्मेल, टेस्ट, फील, रिकॉग्नाइज, हैड, बिलोंग, सीम, अपीयर एंड बहुत सारे, ठीक है। फॉर वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल, इसके लिए फिर इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ, हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ आई एम हेयरिंग, तो मैं यह गलत है, मैं कहता हूँ आई हियर, ठीक है। आई एम सीइंग, तो मैं मुझे कहना चाहिए आई सी। फिर मैं कहता हूँ आई एम स्मेलिंग, सो आई स्मेल। आई एम टेस्टिंग, तो आई टेस्ट। और अगर शायद नादर ऐसा हो जैसा फील है या सी है या कुछ ऐसे वर्ब भी है कि वो बाज़ औक़ात एनजी के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग जो है ना वो एक्शन नहीं शो करता, ठीक है। उसने लिखा भी है कि लिखा है कि यूज़ प्रेजेंट सिंपल, सम ऑफ देम कैन बी यूज बट दे डोंट शो एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट गिव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन वो मुख्तलिफ मीनिंग देते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम सीइंग यू, तो वो कहता है दिस सेंटेंस मीन दैट द स्पीकर इंटेंड्स मीटिंग, कि वो इससे मिलना चाहता है। फिर बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात हम जब किसी एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमारे लिए एक चैलेंज होता है, वो कहते हैं कि या हम बोलते हैं या हम लिखते हैं, तो हमें ये पता नहीं चलता कि इस वक्त मैं कौन सा टेंस यूज़ करूँ। ज़्यादातर पर, ठीक है,
इम्तिहान के हवाले से, MCQs के हवाले से, पुट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ कीवर्ड लिखवाए हैं 9। अगर किसी सेंटेंस में मुझे 9 नज़र आए तो मुझे पता चले कि बस ये ज़्यादा उसके लिए जो है ना मौजू है प्रेजेंट कंटिन्यूस। एट द मोमेंट, अगर एट द मोमेंट सपोज आई एम कमिंग नाउ, हाँ, फिर आप कहते हैं एट द मोमेंट वी आर टेकिंग टी, फिर आप कहते हैं वी आर ड्राइविंग स्टिल, वी आर ऑन द वे, स्टिल नो वी आर ऑन द वे, एट प्रेजेंट वी आर कमिंग, even no we are playing football, any longer या कुछ भी any more। तो ये उनके लिए क्लूज है और ये अक्लमंद राइटर को और अक्लमंद रीडर को और अच्छे स्टूडेंट को यही पता चलता है और ये क्लूज है, ठीक है। तो अगर आपको ये टास्क दिया जाए पुट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फिर आप लाजिमी है कि क्लूज देखोगे, क्लूज के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात रही। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितना आपसे हो सके बार बार लिखो, इस पर प्रैक्टिस करो। ये बहुत कारआमद चीज़ है। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखोगे। थैंक यू वेरी मच।